السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مکمل اردو ناول پاشتون سے شہر سوراخ جاتے ہوئے ہمیں کار کا ایک ایسا خوفناک حادثہ پیش آیا جس نے میری کتاب زندگی میں ایک عجیب و غریب باب کا اضافہ کر دیا۔ موٹر کار کی پچھلی سیٹیں سامان سے لدی ہوئی تھیں۔ چاچا جعفر نے سامان کا ایک جزو بن کر پچھلی سیٹ پر ڈھوئے جانے کے بجائے بہتر سمجھا کہ ڈرائیور کو ساتھ نہ لیں اور اس کی سیٹ پر خود رونقیں افروز ہو جائیں۔ چنانچہ وہ اگلی سیٹ پر بیٹھے کار چلا رہے تھے اور میں ان کے پہلو میں دوربین لیے ادھر ادھر کے مناظر دیکھ رہی اور راستے کا جائزہ لے رہی تھی۔ جہاں کہیں بھی خطر راستہ یا کوئی اچانک موڑ نظر آتا دکھائی دیتا، میں انہیں پہلے سے آگاہ کر دیتی۔ سیاہی صبح کی خوشگوار خنک ہوا، پہاڑی راستوں کی ناہموار گھاٹیاں، کہیں ابلتے ہوئے چشمے، کہیں بل کھاتی ہوئی ندیاں، کہیں کوثر کی کاسنی چوٹیاں، کہیں سربلند صنوبر کے مخروطی سرے، ان تمام چیزوں نے ہمیں بے حد محفوظ کر رکھا تھا۔ دفعتاً میں نے دوربین سے دیکھتے ہوئے کہا، چچا چچا، ایک اور پرخطرہ موڑ آ گیا، رفتار ذرا دھیمی کر لیجیے۔ اف، یہ سیاہ غار راستہ بھی بہت ناہموار ہے۔ چچا جان کے منہ میں موٹا سا سگور تھا، گول گول آواز میں بولے، تردد نہ کرو، بہت آہستہ چلا تو تاخیر کا اندیشہ ہے، ہمیں شام سے پہلے سوراخ پہنچنا ہے، وہاں وکیل میرا منتظر ہوگا۔ ان کا جملہ ختم نہ ہونے پایا تھا کہ آنکھوں نے وہ دیکھا اور حواس نے وہ محسوس کیا کہ الامان الحفیظ کار اچانک ایک بڑے پتھر سے ٹکرائی اور پیچھے ڈھلوان سڑک پر پھسلنے لگی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کا مجھے پتہ نہیں، میرے حواس جیسے کسی اتاہ تاریکی میں ڈوب رہے تھے۔ کار شاید کسی کھڈ میں جا گری ہو، شاید کسی پہاڑ سے ٹکرائی ہو، میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ 5 دن کیسے گزرے مجھے اس کا مطلق احساس نہیں۔ پیشانی پر اور سر کی پشت پر ایسی چوٹیں آئی تھیں جنہوں نے مجھے بے سدھ کر رکھا تھا۔ اس پر شدید بخار نے حواس مختل کر دیے تھے۔ 5ویں دن جب مجھے کچھ ہوش آیا اور میں نے اپنی پلکیں اٹھانے کی ایک ناتواں کوشش کی تو دیکھا کمرے میں ایک گہری تاریکی پھیلی ہوئی ہے، ایسی بے روح تاریکی جسے میری آنکھوں نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ اگرچہ میرا سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا مگر میں نے اسے آہستہ سے گھما کر دریچوں کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر بہت جلد مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں نہ کوئی دریچہ ہے، نہ روشنی کا کوئی دوسرا۔ اچانک سرد اور تاریک قبر کی یاد نے میری روح میں ایک نشتر گھونپ دیا۔ میرے دل نے کہا، یہ قبر ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں چیخ پڑی، چچا چچا، جعفر چچا، جعفر چچا۔ 5 دن کے بعد یکلخت میری آواز سن کر نرس دوڑ پڑی۔ خاتون، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تم کیسی ہو؟ میں نرس ہوں، نرس، میں نے گھبرا کر روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے کمرے میں روشنی کرو۔ روشنی؟ ہاں، میں نے کہا، یہاں کوئی روشنی کیوں نہیں ہے؟ نرس نے قریب آ کر میری نبض پر اپنی انگلیاں رکھیں، پھر بولی، دن کا وقت ہے خاتون۔ میں گھبرا کر اٹھنا چاہتی تھی مگر میری گردن اکڑی ہوئی تھی۔ میں نے بے بسی سے تکیے پر گر پڑی اور رونے لگی۔ نرس، مجھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، مجھے تم بھی دکھائی نہیں دیتی۔ چچا کہاں ہے؟ ہائے چچا! میں ابھی سر جعفر کو بلاتی ہوں، نرس نے کچھ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ میں سسکیاں لیتے ہوئے بستر پر پڑی رہی۔ بیٹی، بیٹی زیبا، کیسی ہو؟ چچا، چچا آپ کہاں ہیں؟ چچا کی آواز آئی، اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، نقاہت کا سبب ہوگا بیٹی، چپ چاپ پڑی رہو، تم 5 دن بے ہوش رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے آ کر مجھ پر جھک گئے اور میری پیشانی چوم لی۔ میں بے اختیار رو پڑی۔ چچا، میرا دل بیٹھا جاتا ہے، مجھے کچھ نہیں سجھائی دیتا، کیا آپ لوگ مجھ سے ہنسی کر رہے ہیں؟ کیا باہر آفتاب چمک رہا ہے؟ ہائے میری آنکھیں کیا ہوئی؟ وہ کھلی ہے یا بند؟ یہ کیا ہو گیا؟ معلوم ہوتا تھا چچا جعفر کو میری باتوں پر ہذیان کا شبہ ہو رہا ہے۔ بار بار کہتے، نرس ٹمپریچر لینا، کہیں بخار زیادہ تیز نہ ہو گیا ہو۔ جناب، میں نے آدھے گھنٹے پہلے حرارت دیکھی تھی، نارمل تھی۔ تو نرس، فوراً ڈاکٹر کو ٹیلی فون کرو۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر پہنچ گیا۔ اس نے مجھ سے چند سوال کیے، پھر دھیمی آواز میں چچا سے کچھ کہا اور انہیں کمرے سے باہر لے گیا۔ میں نے گھبرا کر نرس سے پوچھا، نرس، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ کیا میری بصارت جاتی رہی؟ نرس نے کچھ بتانا شاید مناسب نہ جانا، صرف اتنا کہا، ابھی تو کچھ نہیں کہا، کوشش کیجیے کہ نیند آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ میرے تکیے ٹھیک کرنے لگی۔ میں سسکیاں لیتی ہوئی ایک جنون افزا اندھیرے میں چپ چاپ پڑی رہی۔ مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ آدھ گھنٹے بعد میں نرس سے پوچھ لیا کرتی تھی، نرس اب کیا بج گیا؟ شام کو
चाचा जाफर चुपचाप मेरे कमरे में दाखिल हुए। मैंने उनके कदमों की आहट सुनी। वो आहिस्ता से मेरे करीब खड़े हो गए। मैं मुंतज़र थी कि कोई बात करेंगे, मगर उन्होंने कोई बात न की। वो शायद मेरी आंखों को गौर से देख रहे थे। आखिर घबरा कर मैंने कहा, चाचा। हाँ बेटी ज़ेबा, आप चुप क्यों हैं? मेरा जी घबरा रहा है। मेरी आंखों को क्या हो गया चाचा जान? क्या मैं अंधी हो गई हूँ? मेरे मुंह से एक आह निकली। चचा ज़ब्त करके बोले, नहीं बेटी, ये आर्जी असर है। माबूद होने चाहा तो 1.5-2 हफ्तों में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने महसूस किया कि उनकी आवाज़ में एक दिल दोज़ दर्द पनहा है। मैं चीख पड़ी, 1.5-2 हफ्ते? इतनी मुद्दत इस अंधेरे में रहूँगी? हाय, अब क्या हो गया? चचा बोले, बेटी इस तरह रोया नहीं करते। मैंने आज मशहूर डॉक्टरों से मिलकर मशवरा किया है। उन सब की यही राय है कि डॉक्टर शैदी मशहूर माहिर चश्म हैं। उन्होंने बाज़ पैदाइशी नाबीनाओं तक को बसारत बख्श दी है। वो शोराख से 300 मील के फासले पर रहते हैं और इतने मसरूफ़ आदमी हैं कि शायद ही कहीं बाहर जाते हैं। तो फिर वो यहाँ क्यों कर आएंगे चाचा? ना आए तो हमें उनके वहाँ जाना पड़ेगा। मेरा दिल धक से रह गया। हाय, तो यूँ कहिए मुझे अंधों के हॉस्पिटल में रहना होगा। मैं अंधी हो गई, गोया ज़िंदगी की तारीकी में इधर उधर भटका करूँगी। कोई मेरा रफ़ीक ना होगा। मैंने अंधों के कई अफसाने पढ़े थे। उनकी नामुराद ज़िंदगी की बेरंग अफसाने से बखूबी वाकिफ़ थी। अब यही कैफियत मेरी होती नज़र आ रही थी। ना मैं किताबें पढ़ सकूँगी, ना सुबह और शाम का हुस्न देख सकूँगी। मेरे दिल पर चोट सी लगी और मैंने अपना सर दूसरी तरफ फेर लिया। बेटी रो रही हो? नहीं चाचा जान, मैंने ज़ब्त करके कहा। फिर ऐसे क्यों? उन्होंने मगमूम लहजे में पूछा। कुछ नहीं, थक गई हूँ। बेटी अफसुर्दा ना हो, इंशाअल्लाह डॉक्टर शैदी का जवाब आते ही इलाज शुरू हो जाएगा। या तो वो यहाँ आएंगे या मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। अच्छा चाचा जान। मैंने अपने ज़ख्मी जज्बात को चचा से पोशीदा रखने की कोशिश की। चचा जाफर कमरे से बाहर चले गए और मैं घबरा कर रोने लगी। मेरे लिए अब इस वसी और रोशन दुनिया में कुछ भी न था। तारीकी, सिर्फ और सिर्फ तारीकी। शायद सामने का दरीचा खुला हुआ था। निकात बेज हवा के झोंके कमरे में आ रहे थे। रात की चिड़ियाँ बागीचे में सबक दिल से सीटियाँ बजा रही थीं, मगर नहीं, न रंगीन फूलों को देख सकती थी जिनसे मुझे मोहब्बत थी, न खुशगुलो परिंदों को जिनसे मुझे इश्क था। आह तारीकी, आह। डॉक्टर शैदी का जवाब आ गया कि वो यहाँ नहीं आ सकते। अलबत्ता हमको वहाँ आ जाने के लिए लिखा था। इसी शाम चचा और मैं और बड़ी वाली नर्स कोहे फिरोज़ा रवाना हो गए। जो ही हम वहाँ पहुँचे, डॉक्टर शैदी के प्राइवेट सेक्रेटरी ने हमें एक बड़े हाल में बैठा दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। एक नहायत शीरीं मर्दाना आवाज़ आई, तस्लीम सर। जाफर चचा की आवाज़ आई, तस्लीम, ये मेरी भांजी और आपकी मरीज़ा है। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा होगा, ऐसा मालूम होता था। वो मेरे करीब ही एक कुर्सी पर बैठ गया। हल्की हल्की खुशबू कमरे में फैली हुई थी। चचा हादसे की तफसील बयान कर रहे थे। मैं चुपचाप एक कोच पर बैठी पागलों की तरह एक बेबसी के आलम में सर इधर उधर फेर रही थी। मेरे लिए इस नए मकाम में सिवाय नए आवाज़ों और नई खुशबुओं के और कुछ न था। अपनी मारूमी और नामुरादी का दर्द दिल में लिए उकताई हुई बैठी थी। दफतन चचा की आवाज़ आई, बेटी ज़ेबा, डॉक्टर शैदी तुम्हारी आंखों का मुआयना करना चाहते हैं। उनके साथ चली जाओ। मैं चुपचाप उठ खड़ी हुई। इजाज़त दीजिए कि मैं आपको सहारा देकर ले चलूं, डॉक्टर शैदी ने कहा। उसकी आवाज़ गैर मामूली दिलफरेब और सुरीली थी। मैं चुपचाप डॉक्टर के सहारे जिधर वो ले गए चली गई। मुझे सिर्फ इतना मालूम हुआ कि एक दरवाज़ा उसने खोला और हम दोनों उसमें दाखिल हो गए। डॉक्टर ने मुझे एक कुर्सी पर बैठा दिया। खातून, मैं आपकी आंखों पर शुआएं डालकर देखना चाहता हूँ कि आप एक हल्की सुर्ख सी रोशनी महसूस करती हैं या नहीं। ये कहते हुए मेरी कुर्सी की पुश्त से लगकर खड़ा हो गया और झुककर मेरा सर कुर्सी की पुश्त पर रखकर पेशानी के बाल हटा दिए। मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ? जी हाँ, अगर आप कोई रोशनी महसूस करें तो मुझे बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर, बेसाख्ता मेरी ज़ुबान से निकला, अगर मैंने कोई रोशनी महसूस ना की तो क्या होगा? क्या हमें हमेशा के लिए अंधी मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े? रहमदिल डॉक्टर मुतासिर हो गया। उसने मेरी तस्लीम के लिए मेरी गर्म पेशानी पर अपना शफ़क़त भरा हाथ रख दिया। बोला, बानो, अगर खुदा को यही मंजूर है कि आपकी बसारत आपको वापस ना मिले तो
लेकिन आँख रखते हुए भी ज़िंदगी को तारीक बना लेना और बगैर आँखों के भी ज़िंदगी को रोशन रखना इंसान के अपने हाथ में होता है। इन फलसफियाना बातों पर गौर करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं बेबसी के आलम में रो पड़ी। मगर डॉक्टर, बगैर आँखों के सारी ज़िंदगी कैसे कटेगी? मैं कोई किताब नहीं पढ़ सकती, कोई खुशनुमा मंजर नहीं देख सकती। अब क्या होगा डॉक्टर? डॉक्टर ने मेरे सर पर आहिस्ता से हाथ फेरते हुए कहा, खातून, खौफ ना कीजिए, मैं पूरी कोशिश से आपका इलाज करूंगा। लेकिन अगर कुदरत को यही मंजूर हुआ कि आप अपनी ज़िंदगी तारीकी में काटें तो उसका इंतज़ाम यूँ भी हो सकता है कि आपकी कुव्वते सामया के लिए दिलचस्पियाँ मुहैया की जाएँ। आप हसीन चीज़ों को देख ना सकेंगी मगर खूबसूरत अल्फाज सुन सकेंगी। हसीन राग आपका दिल बहलाएंगे। डॉक्टर ने आहिस्ता से मेरा सर कुर्सी की पुश्त वाली कुशन से लगा दिया और मुझसे कहा कि उसकी तरफ देखूं। अपने स्टैंड की इमदाद से जो बहुत खामोश नौजवान मालूम होता था, वो देर तक मेरी आंखों का मुआयना करता और मुझसे तरह तरह के सवाल पूछता रहता। आखिर कुछ देर बाद इत्मीनान बख्श लहजे में बोला, खातून ज़ेबा, मेरा ख्याल है कि मायूस होने की कोई वजह नहीं। पहले कुछ दिन आपका इलाज किया जाएगा और उसका अगर कोई मुफीद नतीजा ना निकला तो ऑपरेशन किया जाएगा। मैं दोनों के लिए तैयार हूँ डॉक्टर, मैंने कहा। फिर हम कमरे से बाहर निकल आए। डॉक्टर शैदी के ज़ेरे इलाज मुझे 2 हफ्ते गुजर गए। चचा जाफ़र जैसे मसरूफ़ आदमी का अपने शहर से बाहर रहना बहुत मुश्किल था। चुनांचे वो बूढ़ी नर्स को मेरे पास छोड़कर रुखसत हो गए थे। मेरी आंखों की अब तक वही कैफियत थी। ज़िंदगी एक दुख भरी तारीकी में गुजर रही थी। वही चंद लम्हे मेरे लिए खुशगवार होते थे जब डॉक्टर शैदी मेरे पास आ बैठे और किसी पुरलुत्फ़ मौजू पर गुफ्तगू छेड़कर मुझे इसमें ऐसा मुनहमिक कर लेते थे कि सिवाय एक ज़हनी मसरूफ़ियत के मुझे और किसी बात का एहसास न रहता। वो अमूमन ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करते या उनमें मेरी दिलचस्पी पैदा करते जिनके मुतालिक आंखें रखने वाले भी तख्लीकी आंखों से काम ले सकते हैं। आगाज़े आफरीनश, कदीम तहज़ीबें, यूनानी फ़लसफ़ा, नफ्सियात और इसी किस्म के दूसरे मौज़ूओं पर वो कोई बात छेड़कर मेरे तख़ील को एक रास्ता समझा देते और मैं उनके मुतालिक अपनी वसात के मुताबिक बात में से बात पैदा करती रहती। और नामालूम फ़िलवाक़े ऐसा था या महज़ मेरी हौसला अफजाई की गर्ज से डॉक्टर अमूमन मेरी ज़हानत और अंदाज़े फ़िक्र की बहुत दाद देते। ये ख़याल अफरोज़ सोहबतें लज़ीज़ भी होती हैं और तवील भी। शायद मेरे अलावा खुद डॉक्टर भी उनसे कम लुत्फ़ अंदोज़ न होते थे। थोड़े ही दिन बाद वो अपनी फ़ुर्सत का सारा वक्त अपने बाज़ औक़ात अपना काम अपने असिस्टेंट के सुपुर्द करके मेरे पास आ बैठते और कोई गुफ्तगू वहीं से शुरू कर देते जहाँ पिछली सोहबत में हमने उसे ख़त्म किया था। ख़याली बातें न करते तो मेरे एहसासात का ख़याल रखते हुए उनकी आंखें मेरी आंखों का काम सरे अंजाम देती और वो आस पास की एक एक चीज़ जिसे देखने की मैं ख्वाहिश करती बड़ी तफसील से मुझसे बयान करने लगती। रफ्ता रफ्ता मुझे एहसास होने लगा कि अलावा मुझसे हमदर्दी होने के डॉक्टर के दिल में मेरी कदर भी पैदा होती जा रही है। डॉक्टर के रुखसत हो जाने के बाद बाज़ औक़ात मुझे बहुत देर तक अपनी नाबीनाई का एहसास तक न होता। मेरे तख़ील के लिए सोचने और गौर करने को हमेशा कुछ न कुछ मौजूद रहता था। लेकिन जब कभी अमली ज़िंदगी का कोई वाक़या मुझ में अपनी नाबीनाई का एहसास ताज़ा कर देता तो इस तमाम खुद फरामोशी की कसर निकल जाती कि फिर तकान के सिवा और कोई शय मेरे लिए बाइसे तस्कीन न बन सकती। एक शाम दरीचे के पास कूच पर बैठी थी। सर दरीचे के बाहर निकाल रखा था। दरख्तों पर बुलबुलों के नगमे सुनाई दे रहे थे कि एकाएक मुझे एक सुरीली तान सुनाई दी और फिर एक ख़ास धीमी धीमी खुशबू आई। मालूम हो गया कि डॉक्टर शैदी मेरे करीब ही कहीं होंगे, क्योंकि जब कभी वो आते यही खुशबू कमरे में फैल जाती थी। इसी वक्त डॉक्टर की आवाज़ आई, मैं आपको दरीचे में देख कर इधर आ निकला। मैं यहाँ चिड़ियों के नगमे सुन रही थी। डॉक्टर, क्या अभी अभी आप ही कोई मिसरा गुनगुनाते जीने पर चले आ रहे थे? जी हाँ, वो मैं ही था। कितना प्यारा राग था, मेरी ज़ुबान से निकला। जब से बसारत गई मेरी कुव्वते सामया तेज़ होती जा रही है। डॉक्टर, क्या आफ़ताब गुरूब हो गया? डॉक्टर मेरे करीब आकर खड़े हो गए, फिर कहा, अभी अभी गुरूब हुआ है। मेरा ख्याल है किसी तरफ को चाँद तुलू हो रहा होगा। आइए मैं आपको बाग में ले चलूं। मैं फ़ौरन तैयार हो गई। उसने मुझे अपने हाथ का सहारा दिया। डॉक्टर शैदी दराज़े कद और मजबूत आदमी मालूम होते थे। उनकी आवाज़ भी बहुत दिलफरेब थी। जिस वक्त हम दोनों बाग के जीने पर उतर आए, अचानक मेरा दिल धड़कने लगा।
यकीनन वो बहुत खूबसूरत भी होगा। मेरा दिल बेअख्तियार चाहने लगा कि उसकी शक्ल देखूं। हम 2 मिनट बाग के जीने पर चुपचाप खड़े रहे। फिर डॉक्टर शैदी ने कहा, अब चाँद तुलू हो रहा है। बागीचे पर उसकी हल्की हल्की रोशनी कांपने लगी। चाँद बहुत सफ़ेद है, ना बहुत जर्द, पत्ते भी हिल रहे हैं। उनकी आवाज़ तो आप भी सुनती होंगी। हाँ, आवाज़ आ रही है। क्या नन्हे नन्हे पौधे भी झूम रहे हैं? मैंने पूछा। नहीं, इतनी तेज़ हवा नहीं, बस सर बुलंद दरख्तों की टहनियाँ हिल रही हैं। लीजिए, चाँद अब कुछ ऊपर को बढ़ाया। शहतूत का साया खौफनाक मालूम होने लगा। क्या शहतूत भी लगे हैं? हाँ, गर्मियों का आगाज़ है, कच्चे शहतूत लगे हैं। चलिए, आपको फव्वारे की तरफ ले चलूँ। दोनों फव्वारे के पास एक कूच पर जा बैठे। वो कहने लगे, फव्वारे पर एक औरत की गर्दन तरसी हुई है। औरत की दोनों आंखों में से पानी निकल रहा है, गोया आंसू बह रहे हैं। मैं बोल उठी, कितना अलमनाक तख़ील है। न जाने ऐसा बुत क्यों तराशा गया। चाँद की किरणें नन्ही नन्ही बूंदों पर चमकने लगीं। लीजिए, अभी हमारे सामने से एक जंगली खरगोश झाड़ी में भाग गया। सरसराहट आपने भी सुनी होगी। हाँ, सुनी थी। डॉक्टर, आज तो आप बिल्कुल वही खिदमत अंजाम दे रहे हैं जो कभी मेरी आँखें दिया करती थी। मैं सोच रही हूँ, अगर मैं यहाँ से मायूस गई तो घर पर मेरी आँखों का काम कौन देगा। डॉक्टर 2 लम्हे चुप रहा। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे बगौर देख रहा है। मैं कुछ शर्मा सी गई और बोली, डॉक्टर, आप क्या कर रहे हैं? चुप हैं। और बोले, आपने अभी अभी मुझसे सवाल किया था कि आप यहाँ से मायूस गईं तो घर पर आपकी आंखों का काम कौन अंजाम देगा। तो खातून, आपको जो बेहतरीन दोस्त होगा उसका सबसे बड़ा फ़र्ज़ यही होगा कि आपकी आंखों का काम दे। मैं तो मायूस लहजे में बोली, मगर मैं कोई भी ऐसा दोस्त नहीं रखती डॉक्टर। बिलफ़र्ज़ अगर ऐसा कोई निकल भी आए तो उसे इतनी फुर्सत कहाँ होगी कि अपनी ज़िंदगी के तमाम काम छोड़ के मुझे दुनिया की बातें सुनाया करे। ऐसी हमदर्दी तो फ़रिश्तों में होती है, इसीलिए तो मैं आपको फ़रिश्ता समझती हूँ। कोई भी ऐसा दोस्त नहीं? डॉक्टर ने पूछा। उसकी आवाज़ में संजीदगी और दर्द भरा हुआ था। कोई नहीं डॉक्टर, मैंने कहा। क्या क्या ये खिदमत मैं अंजाम दे सकता हूँ? मैं हैरान हुई। क्या? कौन सी खिदमत? यही कि ज़िंदगी भर आपकी आंखों का काम मेरे अल्फाज दे सकें। ज़िंदगी भर? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, ये क्यों कर मुमकिन है, ज़िंदगी भर? मैं पागलों की तरह सवाल किए जा रही थी। मेरी हैरत अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि डॉक्टर शैदी ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और भारी आवाज़ में बोले, ज़ेबा, मैं ज़िंदगी भर इस खिदमत को अंजाम दूंगा। मुझे तुमसे मोहब्बत है, शदीद, बड़ी शदीद। मैं लरज़ गई। सिर्फ मोहब्बत के फ़क़रे सुनना और अपने चाहने वाले का चेहरा न देखना किस कदर अजीब होता है। ऐसा मालूम होता था जैसे कहीं दूर से एक मलकोती राग मेरे कानों में पहुंच रहा है। मैं आज खुद रफ्ता होकर डॉक्टर पर गिर पड़ी। मेरी ज़ुबान से सिर्फ इतना निकल सका, शैदी। शैदी ने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। लर्जी हुई आवाज़ से मेरे कान में पूछने लगे, ज़ेबा, तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? मैं बेखुदी के आलम में बोली, यकीनन। मुझे तुम्हारी आवाज़ से इश्क है। मैं तुम्हारे फ़लसफ़ियाना और शायराना फ़क़रों की शैदा हूँ। इस अहद पैमान के बाद मोहब्बत का एक नहायत पुरलुत्फ़ और रंगीन दौर शुरू हो गया। मेरी रग रग में डॉक्टर शैदी की मोहब्बत सांस लेती मालूम होती थी। उनकी आवाज़ सुनते ही मेरी ख़ाबीदा रूह जैसे जाग उठती। उनके मज़बूत हाथों को छू कर मैं एक नई ज़िंदगी हासिल करती थी। मेरी ज़िंदगी की ये पहली मोहब्बत थी और यकीनन आखिरी। अब ये हर रोज़ का मामूल हो गया था कि अपने काम से फ़ारिग होकर शाम के वक्त शैदी मेरी तरफ़ आ जाते और मुझे बागीचे में चहलकदमी करवाते। वो घंटों पत्तों का हिलना, आसमान का रंग, शफ़क़ की सुर्ख़ी, फूलों की रंगीन ज़िंदगी की कहानी मुझे सुनाते रहते। मेरी आँखें नहीं थीं, मगर शैदी के फ़क़रों ने आँखों की कमी को बहुत हद तक भुला रखा था। इस दौरान में चचा जाफ़र 3 दफ़ा एक दिन के लिए आए और मुझे देखकर कुछ मायूस से चले गए। आखिर जब 1 महीना गुजर गया तो एक दिन शैदी ने कहा, ज़ेबा, मालूम होता है कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ये सुनकर मैं डर गई। शैदी, मुझे ऑपरेशन के नाम से डर लगता है। मैं सच कहती हूँ, पहले मैं अपनी नाबीनाई से बेजार थी, मगर अब मोहब्बत ने मेरी रूहानी आँखें जगमगा दी हैं। मुझे अब अपनी आँखों की परवाह नहीं है। मगर प्यारी, उन्होंने प्यार के लहजे में कहा, तुम मुझे तो नहीं देख सकती। मैं मचल गई। हाँ शैदी, अलबत्ता मुझे तुम्हारे देखने की कितनी तमन्ना है। तुम खुद ही मुझे बता दो, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर अंदाज़ लगा सकती हूँ कि तुम कितने हसीन होगे। अच्छा, मुझे देखने तो दो। ये कहकर मैंने अपने दोनों हाथों से उनका चेहरा टटोला।
तुम बेहद हसीन हो, तुम्हारी आंखें लंबी लंबी हैं, तुम्हारी पेशानी कुशादा है, ये सब कुछ सही ज़ेबा। ख्याल करो जब हमारी शादी होगी, जब हमारे नन्हे नन्हे बच्चे होंगे, इस वक्त आंखों की ज़रूरत किस कदर महसूस होगी। शैदी की आवाज़ में एक इर्तियाज था। मैं शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगी, फिर शर्मीले अंदाज में बोली, शैदी क्या बातें करते हो। शैदी मुझे अपने बाजुओं में लेकर बोले, मैं गलत नहीं कहता, कुछ अरसे बाद तुम्हें अपनी आंखों की ज़रूरत महसूस होगी। लम्हा भर बाद कुछ सोच कर मैं बिगड़ सी गई, बोली, हाँ बेशक तुम सच कहते हो, अंधी बीवी मुसीबत होती है ना। खुदा की कसम ये बात नहीं है मेरी ज़ेबा, अंधी बीवी तो मुफीद होती है, मुसीबत क्यों होने लगी। मगर मैं नहीं चाहता कि तुम आंखों जैसी नेमत से ज़िंदगी भर महरूम रहो। अगर तुम्हें इस बात का ख्याल है कि मैं अंधी बीवी को मुसीबत समझता हूँ और मैं अपने फ़ायदे के लिए तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करना चाहता हूँ, तो मैं तुमसे तुम्हारी मौजूदा नाबीनाई की हालत में शादी करने पर तैयार हूँ। कुछ अरसे बाद तुम्हें खुद आंखों की ज़रूरत होगी, इस वक्त तुम्हारे कहने पर मैं ऑपरेशन करूँगा। ज़ेबा, अब तुम्हारा इत्मीनान हो गया। मैं मुस्कुराई। शैदी, अगर तुम ज़िंदगी भर मुझसे ऐसी मोहब्बत करोगे जैसी आज करते हो, तो मैं अपनी आंखों की कमी को कभी महसूस ना करूँगी। मेरे प्यारे शैदी, तुम्हें नहीं मालूम, दिन रात मोहब्बत भरे फ़क़रे सुनते रहना भी एक फिरदौसी ज़िंदगी है। मेरी आंखें आ जाएंगी तो तुम्हारे मोहब्बत भरे अल्फाज भी कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर उनकी ज़रूरत ना रहेगी। नहीं शैदी, मैं अंधी ही अच्छी, मुझे तुम्हारे मोहब्बत मैसर हो तो फिर नाबीनाई का कोई गम नहीं। ये सुनकर शैदी बेताब हो गए। ज़ेबा, फिर तो हमें शादी में देर नहीं लगानी चाहिए। इस माह के इख्तिताम पर हमारी मुश्तरका ज़िंदगी का आगाज़ हो तो कैसा है। असल मरहला तो सर जाफरी की मंजूरी का है, उन्हें अब तक इसका भी इल्म नहीं कि यहाँ हम में किस शिद्दत की मोहब्बत हो गई है। मैं धीमे लहजे में बोली, मगर मेरा ख्याल है चचा को किसी किस्म का एतराज़ ना होगा, क्योंकि आखिर उन्हें भी तो मेरी नाबीनाई का ख्याल होगा कि नाबीना से शादी कौन करेगा। शैदी बोल उठे, नहीं नहीं, ऐसा ख्याल ना करो। ये सुर्ख गुलाब की पत्ती जैसे होंठ और ये सुनहरे बाल और मासूम भोला भाला चेहरा हर नौजवान को अपनी तरफ खींच सकता है। इन चीज़ों को देखकर किसी को नाबीनाई का ख्याल तक नहीं आ सकता। आखिर मेरा ख्याल दुरुस्त निकला, यानी जब डॉक्टर शैदी ने चचा से मेरे लिए दरख्वास्त की तो उन्होंने फ़ौरन मंजूर कर लिया। मगर इतना ज़रूर कहा, डॉक्टर शैदी, जो कुछ आप करना चाहते हैं कुछ दिनों बाद गौर करके कीजिए। एक नाबीना लड़की से शादी करना गौर तलब मामला है। क्या आपने इस पर काफ़ी सोच लिया है। मैं नहीं चाहता कि आइंदा आपकी या ज़ेबा की अज़दवाजी ज़िंदगी में उसकी नाबीनाई की वजह से दिक्कतें पैदा हों। सर जाफ़र, डॉक्टर शैदी की दिलफरेब आवाज़ आई। मैंने इस पर काफ़ी गौर कर लिया और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे खातून ज़ेबा से बेहतर बीवी इस दुनिया में नहीं मिल सकती। आप इत्मीनान रखिए, इंशाअल्लाह कोई ऐसी सूरत पैदा ना होगी जिससे ज़ेबा को उनकी नाबीनाई के बाइस किसी किस्म की तकलीफ़ हो। फिर तो मैं मुतमईन हूँ, चचा ने कहा। इस गुफ्तगू के बाद इसी शाम डॉक्टर शैदी भागे भागे मेरे पास आए और मुझे लिपटा लिया। ज़ेबा, ज़ेबा, मुझे मुबारकबाद दो, तुम्हारे चचा ने इजाज़त दे दी। 15 दिन बाद अप्रैल के आखिरी हफ्ते की एक खुशगवार शाम हमारा अक़द नहायत खामोशी से हो गया। शैदी कह रहे थे कि मैं इस शाम अपने लंबे दामनों वाले और उसी लिबास में नारंगी और मोतिया के फूलों में लिपटाई ऐसी मालूम हो रही थी जैसे यूनानियों के हुस्न और इश्क की देवी। हमने अपने अय्याम उरूसी एक चमकीले साहिल पर बसर किए और मेरी ज़िंदगी का इंतहाई पुरलुत्फ़ और रंगीन ज़माना था। मुझे अपनी नाबीनाई का ज़्यादा सदमा ना रहा था, मगर मैं महसूस कर रही थी कि शैदी की दिली तमन्ना ये थी कि मेरी बसारत बहाल हो जाए, और एक चाहने वाले की यही तमन्ना होनी चाहिए। चुनांचे एक दिन जब मैं दरीचे में खड़ी समुंदरी हवा से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी, वो आ गए और कहने लगे, ज़ेबा, ज़िंदगी के हर लम्हे पर ऐसा शुबा होता है जैसे हम फिरदौस में बैठे हों। आज तुम्हारी आंखें होती तो ये खलश न रहती जो मेरे दिल में खार बनकर खटक रही है। मैं मुस्कुराकर बोली, अगर मेरी नाबीनाई का सदमा हमारी मुसर्रत में खलल अंदाज हो रहा है तो मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ शैदी। क्या वाकई? हाँ शैदी, बिल्कुल। तुम बड़ी अक्लमंद लड़की हो ज़ेबा। सोचो, तुम्हारी आंखें आ जाएंगी तो हमारी ज़िंदगी किस कदर रोशन होगी। इसका ख्याल गफूर मुसर्रत से मुझे पागल बना देता है। तुम मुझे देख सकोगी, अपने शौहर को। मैं बेताब होकर बोली, अल्लाह, वो वक्त कितना मुबारक होगा तुम्हें देखना, अपने प्यारे शैदी को देखना। मेरी तमाम रूह खींच कर मेरी आँखों में आ जाएगी। फिर एक लम्हे के बाद
कुछ अफसुर्दगी के लहजे में बोली, मगर शैदी अब मैं तुम्हारे दिल क्या आवाज़ सुन रही हूँ। आंखें आ जाएंगी तो हमारी मोहब्बत चुपचाप हो जाएगी। शैदी हंस पड़े, पागल लड़की, कोई इतनी सी बात पर आंखें खो देता है। क्यों नहीं शैदी, मैं कहने लगी, क्यों नहीं। मुझे तुम्हारे मोहब्बत भरे फकरे आंखों से कहीं ज़्यादा महबूब है। मैं इन फकरों को खो दूंगी, इनसे महरूम हो जाऊंगी। शैदी बोले, तुम्हें तो महज मेरे फकरों से महरूम हो जाने का अंदेशा है, मगर क्या मुझे इस बात का खदशा नहीं पैदा हो सकता कि तुम्हारी आंखें आने पर कहीं मैं तुम्हारी मोहब्बत ही से महरूम ना हो जाऊं। मैं समझ ना सकी। मोहब्बत से महरूम, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। शैदी दो लम्हे खामोश रहे, न जाने क्या कर रहे थे। मैंने फिर पूछा, शैदी बोलते क्यों नहीं, तुम मोहब्बत से महरूम क्यों होने लगी। शैदी कहने लगे, ज़ेबा मैं साफ साफ बता दूं, देखो मुझे माफ़ कर दो, मैंने बड़ा धोखा दिया और शायद इस धोखे का इंकशाफ अब बाद अज वक्त हो, मगर अब बता देता हूँ कि मैं कोई हसीन आदमी नहीं हूँ। मैं कुछ हैरान हुई, मगर जब मैं अपनी उंगलियों से तुम्हारे चेहरे को टटोलती हूँ तो तुम बड़े हसीन मालूम होते हो। देखना अलहदा बात, अब तुम मुझसे मोहब्बत करते हो इसलिए भी मैं तुम्हें हसीन मालूम देता हूँ। आंखों से देखने के बाद ना मोहब्बत होगी ना मैं हसीन मालूम होऊंगा। शैदी हल्की हंसी हंस पड़े। जो शख्स हंसी इतनी होश रबा और मौसीकी आमेज ओ बदसूरत हो सकता है। कहने लगे, देखा आखिर डर गई ना, लेकिन ज़ेबा मेरी बदसूरती तुम्हें अंधा नहीं रख सकती। एक वफादार शौहर इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता, वो अपनी बीवी के लिए हर कुर्बानी पर तैयार हो जाता है। हाँ, मुझे देखने के बाद तुम मुझसे नफरत ही करो, मगर मैं ज़रूर तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करूँगा। ये कहते हुए वो मुझे सहने बाग में ले आए। मैं कुछ सोचने लगी। बागीचे में सन्नाटा था। दरीची के पास एक नन्हा सा परिंदा गा रहा था। समंदर की मौजों की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। बड़ी देर बाद मैंने सर उठाया। शैदी तुम कहाँ हो। अंधेपन के बाद इस सवाल की मुझे आदत हो गई थी। फिर बोली, तुम यखलक चुप हो गए, क्या सोच रहे हो। प्यारी, मैं ये सोच रहा था कि जब मोहब्बत के अंधे देवता की आंखें पैदा होती हैं तो क्या होता है। मैंने एक गहरी सांस ली। शैदी तुम बड़े बदगुमान आदमी मालूम होते हो। मुझे तुम्हारे हुस्न या बदसूरती से यकीनन मोहब्बत नहीं, मुझे तुमसे मोहब्बत है। यकीन करो, तुमसे। काश मैं अपना दिल खोल कर तुम्हें बता सकती। तुम मेरी आंखों का ऑपरेशन करो और देख लो, मेरी मोहब्बत का देवता तुम्हारी सूरत के मामले में हमेशा अंधा ही रहेगा। क्या तुम दिल की गहराइयों से कह रही हो ज़ेबा, उन्होंने पूछा। हाँ हाँ मेरे प्यारे शैदी, दिल की गहराइयों से। क्या तुम मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करोगी हमेशा शैदी। ये सुनकर शैदी ने मुझे मजबूती से अपने बाजुओं में जकड़ लिया। इस गुफ्तगू के दूसरे हफ्ते मेरे ऑपरेशन की तैयारियां होने लगीं। चचा जाफ़र और डॉक्टर शैदी मुझे तसल्ली दिलासे देते रहते थे। आखिर वो हैबतनाक दिन आ गया और मेरा ऑपरेशन हुआ। वो वक्त भी गुजर गया। अब मेरी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। कमरा में अंधेरा था। 9वें दिन मेरी पट्टियां खुलने वाली थीं। गोया अगर मेरी किस्मत में हुआ तो 9 दिन के बाद मैं अपने महबूब शौहर का चेहरा देख सकूंगी। ना पूछिए वो अय्याम किस बेकरार यावर तजब्बुज़ में कटे। जिस सुबह मेरी पट्टियां खुलने वाली थीं, उसी रात शैदी मेरे कमरे में कुछ घबराए से आए। ज़ेबा, आज की शाम ज़ाया नहीं करनी चाहिए। क्या पता ये शाम हमारी मोहब्बत की आखिरी शाम हो। इस शाम के बाद क्या पता हमारी तकदीर बदल जाए। मुझे सदमा हुआ। शैदी तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं अपनी पट्टियां अभी खोल कर फेंक दूंगी। शैदी बोले, तो फिर शायद आज ही शाम से ज़िंदगी का रुख बदल जाए। मैं चिढ़कर बोली, अगर मेरी आंखों की रोशनी से तुम्हारी ज़िंदगी तारीक हो जाने का अंदेशा है तो मैं कभी न चाहूँगी कि मेरी आँखें आ जाएं। अच्छा ज़ेबा, कल तुम्हारी मोहब्बत और मेरी कमजोरी का मुकाबला है। मैं बोली, बेशक होगा। शैदी औरत अपने शौहर को बहुत ही चाहती है, खुसूसन ऐसी लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी में शौहर के सिवा कभी किसी मर्द से मोहब्बत ना की हो। क्या तुमको इल्म नहीं, मैंने सिवाय तुम्हारे कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। शैदी बगौर मेरे चेहरे का मुताला कर रहे थे, क्योंकि वो खामोश थे। फिर थोड़ी देर बाद झुककर मेरे रुखसारों को छुआ और बोले, अच्छा ज़ेबा, खुदा हाफिज़। सुबह देखा जाएगा कि जब मोहब्बत के अंधे देवता की आंखें पैदा होती हैं तो क्या होता है। मैं मुस्कुराकर बोली, देख लेना। दूसरे दिन की सुबह को मैं कभी नहीं भूल सकती। शैदी ने खामखा मेरे दिल में विश्वास सा पैदा कर दिया था। अव्वल तो ये धड़का की बसारत बहाल होती है या नहीं, फिर भी
हो भी जाती तो फिर तरह तरह के अंदेशे थे। मैं खुदा से दुआएं मांग रही थी कि माबूद मुझे इस इम्तिहान में कामयाब कर। कभी अपने दिल से बातें करने लगती कि क्या वाकई जिस शख्स की मैं शैदाई हूँ, जिसे मैं दुनिया का बेहतरीन मर्द समझती हूँ, वो कमरू और करिया मंजर आदमी है। क्या उसे देखकर मेरी मोहब्बत लरज़ जाएगी? मैं ये दुआ नहीं करती कि वो बदसूरत ना हो, बल्कि ये दुआ करती हूँ कि उसे देखकर मेरी मोहब्बत सहम ना जाए। मुझे शैदी से मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत। मेरे कदम इस राह में कभी न डगमगाएंगे। मगर फिर आपसे आप दिल सरगोशी में कहने लगता, पागल लड़की, मोहब्बत का ताल्लुक़ तो दिल से पहले आँख से है। मोहब्बत देख कर होती है। गर्ज मेरी रात शदीद तरीन इज़्तिराब में कटी। सुबह हुई तो दिल मारे अंदेशों के बैठा जा रहा था। जब शैदी मेरे कमरे में दाखिल हुए तो मैं हाँप रही थी। बेबस होकर उनसे लिपट गई। ज़ेबा, मेरी ज़ेबा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, मगर ये सिसकारी निकल गई। क्यों? मेरी किस्मत पर रो रही हो? उन्होंने भारी आवाज़ से पूछा। मैं ज़ब्त करके बोली, मैं सोच रही हूँ इतनी मुद्दत बाद मैं दुनिया को कैसे देखूँगी। इस ख्याल से खौफ मालूम होता है। मैंने शैदी का गर्म सांस अपने रुखसार पर महसूस किया, फिर बोली, शैदी, जब मैं तुम पर पहली निगाह डालूंगी तो मेरे दिल की क्या हालत होगी। उफ़ मेरे अल्लाह। शैदी संजीदा लहजे में बोले, ज़ेबा, तुम्हारी आंखों की पट्टियाँ मैं नहीं खोलूँगा, मुझे डर लगता है। मेरा असिस्टेंट ये खिदमत अंजाम देगा। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी शैदी। मेरा तो यही ख्याल था कि तुम खोलोगे और दुनिया में सबसे पहले मुझे तुम्हारी हसीन सूरत नज़र आएगी। अगर वो हसीन होती तो ऐसा ही होता ना ज़ेबा। आखिर वो वक्त आ गया कि मेरी पट्टियाँ खोली जाने लगी। मैं चुपचाप लेटी थी। मेरे अतराफ 2-3 डॉक्टरों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मेरे दिल की अजीब हालत है। मालूम होता था कि शैदी भी इस कमरे में मौजूद है। आखिर पट्टी खुल गई। डॉक्टर ने मुझे देखने को कहा। उफ़, ओ लम्हा, पलकों को पलकों से जुदा करना, रोशनी के लिए या अब्दी तारीकी के लिए। सहमे और धड़कते हुए दिल के साथ मैंने पलक उठाई। मैं लरज़ गई और एक चीख सी मेरे मुंह से निकल गई। रोशनी की पहली किरण मैंने महसूस की। इस धुंधली रोशनी में से कमरे के रंग उभरते और वाज़े होते जा रहे थे। मैंने इधर उधर देखा, वहाँ कोई न था। मैं एक सब्ज़ दरीचों वाले हसीन कमरे में कूच पर पड़ी थी। खिड़की में से आसमान नज़ारा अफरोज़ था, वही नीला रोशन हलम से मुस्कुराता हुआ आसमान। शैदी, शैदी, मेरे मुंह से निकला। शैदी ने मुझे मेरी आंखें वापस दे दी। ये उन्हीं के प्यारे हाथों का करिश्मा है। मेरे दिल में मोहब्बत का एक चश्मा उबलने लगा। इस शख्स को देखने के इश्तियाक ने मुझे पागल बना रखा था, जिससे मुझे मोहब्बत थी और जिसने मुझे आंखें बख्शी थी। दफतन पर्दे के पास मुझे कुछ आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा और चीख कर कहा, शैदी। मर्दाना हुस्न व वजाहत का एक दिलफरेब नमूना पर्दे के पास खड़ा था। लंबी लंबी नशीली आँखें, सुनहरे बाल, हसीन मांग, नहायत शगुफ्ता चेहरा। मैं बेखुद होकर उसकी तरफ गई। वह पूरे शौक़ से मेरी ज़ुबान से बमुश्किल इतना निकला, मेरे शैदी। नौजवान ने सर झुकाकर मुझे सलाम किया। भारी आवाज़ में बोला, डॉक्टर शैदी बाहर है मुअज़्ज़ज़ खातून, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। और मैंने मायूस लहजे में कहा, मुझसे गलती हुई, क्या आप बराए करम उन्हें बुला देंगे? असिस्टेंट बोला, 5 मिनट में वो खुद ही आ जाएंगे। वो अपने इस वक्त के इज़्तिराब को मरीज़ों में मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपना इश्तियाक छुपा ना सकी। असिस्टेंट, तुमको मालूम है कि मैं मुद्दत से अंधी थी। मैंने अपने शौहर का चेहरा कभी नहीं देखा। आप मुझे बता देंगे कि वो कैसे हैं? और मुस्कुराया। वो मेंटल पीस पर डॉक्टर शैदी की तस्वीर रखिए। इधर आइए। मैं मेंटल पीस के पास गई और तस्वीर उठा ली। ये शैदी की, मेरे रफ़ीक़े ज़िंदगी की तस्वीर है। मेरे अल्लाह, मेरे मुंह से एक आ निकल गई। ये एक 40 साला मर्द की तस्वीर थी। पेशानी फ़राक मगर नक्श नहायत भद्दे, चेहरे पर करीख्तगी बरस रही थी। इस तमाम तस्वीर पर कुछ ऐसी बेरौनकी और बदसूरत छाई हुई थी कि मेरे पाँव तले की ज़मीन निकल गई। सामने कदआदम आईने में अपना काहिदा मुजस्समा देखकर मैं लरज़ गई। मुझसी नाज़नीन औरत ये किस मर्द की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई? असिस्टेंट मुझे बगौर देख रहा था। बोला, भोली खातून, किस सोच में खड़ी हो? आपकी कुछ दिनों की नाबीनाई ने आपकी ज़िंदगी से बड़े बदसलूकी की। जब डॉक्टर शैदी से आपकी शादी होने लगी तो कई बार मेरा जी चाहा कि किसी खुफिया तरीक़ पर आपको उनकी बदसूरती के राज से आगाह कर दूं। मगर आप जानिए डॉक्टर शैदी, भला ऐसा मौका मुझे कब देने लगे थे?
آخر انہوں نے وہی کیا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو گئی۔ ان کی تجرد کی زندگی کی تمام ذمہ داری اور ان کی شکل پر عائد ہوتی ہے۔ اس علاقے کی تقریباً تمام لڑکیوں نے انہیں بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ آخر آپ کی بدنصیبی آپ کو یہاں کھینچ لائی۔ میں ششدر کھڑی تھی اور ٹکٹکی باندھ کر اس حسن کے دیوتا کو دیکھ رہی تھی جو میرے سامنے کھڑا تھا۔ یہ بالکل افسانوں کے ہیرو کا سا حسن و جمال لگتا تھا۔ کچھ دیر بعد میری نظر اپنے شوہر کی تصویر پر گئی، مگر مجھے ڈاکٹر شیدی سے محبت تھی۔ محبت ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ آپ کی محبت نابینائی کی مرہون منت ہے۔ اب آپ اپنی آنکھوں سے مشورہ لیجیے۔ سچ تو یہ ہے خاتون زیبا، آپ سی نازنین لڑکی کو ڈاکٹر صاحب نے جیسے مکروہ انسان کے ساتھ دیکھ کر میرے دل پر چھریاں چلنے لگتی ہیں۔ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اسسٹنٹ۔ محبت کا دار و مدار حسن پر نہیں ہوتا۔ نوجوان اسسٹنٹ دلفریب آواز میں ہنس پڑا۔ ایمان سے کہیے، آپ کو اپنے شوہر کی تصویر کو دیکھ کر مایوسی نہیں ہوئی؟ میں بولی، اس کے لیے میں پہلے سے تیار تھی۔ شیدی نے مجھے خود بتا دیا تھا کہ وہ حسین نہیں ہیں، مگر میں سمجھتی تھی وہ ان کی شکل ایسی تو نہ ہوگی۔ اگر آپ کو شبہ ہے تو کھڑکی سے جھانک کر دیکھ لیجیے۔ وہ برآمدے میں ایک مریض کو کچھ ہدایتیں دے رہے ہیں۔ میں دھڑکتے ہوئے دل سے کھڑکی کی طرف گئی اور جھانک کر دیکھا۔ آہ! میرا دل بیٹھ گیا۔ وہ تصویر سے زیادہ بدصورت تھے۔ کیا میں اسی شخص کی پرستش کرتی ہوں؟ کوئی عورت اس سے محبت کر سکتی ہے؟ میں سر پکڑ کر ایک کوچ پر بیٹھ گئی۔ نوجوان اسسٹنٹ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ایک گہرے نیلے رنگ کی قمیص پہن رکھی تھی۔ وہ ایک افسانوی انداز میں مجھ پر جھک کر بولا، خاتون زیبا، آپ بڑی جلد باز لڑکی ہیں، مگر آپ سے زیادہ تعجب مجھے آپ کے چچا پر ہوتا ہے۔ انہوں نے آپ کو اس تاریک غار میں کیوں پھینک دیا؟ کیا ڈاکٹر کی دولت اور ثروت نے انہیں اندھا کر دیا تھا؟ میں جلدی سے بولی، نہیں، سر جعفر کو دولت و حشمت کی مطلق پرواہ نہیں۔ انہوں نے یہی سوچا ہوگا نا کہ اندھی لڑکی، یہ ظلم ہے، صریحہ ظلم۔ اسسٹنٹ نے کہا، آپ سی حسین لڑکی اگر اندھی بھی تھی تو کسی کو کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ مثال کے طور پر میں خود اپنے آپ کو پیش کر سکتا تھا۔ اگر آپ سی اندھی بیوی مجھے مل جاتی تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب۔ میں نے روکا، اسسٹنٹ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے چیف کی بیوی ہوں۔ تم بہت نامعقول شخص نکلے۔ معاف کرنا خاتون زیبا، مجھ سے لغزش ہوئی۔ میں نے رکھائی سے کہا، اچھا تو اب آپ براہ کرم ڈاکٹر شیدی کو بلائیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ بہت اچھا۔ یہ کہہ کر اسسٹنٹ باہر چلا گیا۔ جب محبت کے اندھے دیوتا کی آنکھیں پیدا ہوتی ہیں، تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر شیدی اپنے کرخت وضع کے چہرے پر مسکراہٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کمرے میں آئے اور خوبصورت اسسٹنٹ باہر چلا گیا۔ زیبا، انہوں نے کہا۔ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ شیدی میری زبان سے نکلا اور ساتھ ہی ہجوم جذبات سے دو موٹے موٹے آنسو میرے رخسار پر ڈھل آئے۔ زیبا، آنکھیں مبارک! سچ مچ تم دیکھ سکتی ہو۔ روتی ہو کیوں؟ کیا میری تقدیر پر؟ انہوں نے نہایت افسردگی کے ساتھ کہا۔ ان کی آواز ایک انوکھے طور پر دردناک معلوم ہو رہی تھی۔ میرے حواس جیسے سن ہو گئے تھے۔ نہیں شیدی، نہیں! یہ کہہ کر نہ جانے کیوں میں سسکیاں لینے لگی۔ وہ کس قدر قریب آ گئے۔ زیبا، جب محبت کے اندھے دیوتا کی آنکھیں پیدا ہوتی ہیں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ سسکیاں، اپنے کیے پر پچھتاوا، آنسو۔ نہیں شیدی، میں اپنے قول پر قائم ہوں۔ میں اب بھی تم کو چاہتی ہوں۔ ہاں، چاہتی تو ہو، مگر کیا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتی ہو کہ نابینائی کے ایام میں جس درفتگی سے مجھے چاہا کرتی تھی وہی درفتگی اب تک موجود ہے؟ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شیدی، مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، مجھے تمہاری محبت چاہیے۔ میری آنکھوں میں کوئی تیزاب ڈال دو تاکہ پھر میں اپنے خوابوں کی محبت کا گیت گا سکوں۔ میرے شیدی، آنکھیں بڑی فسادی ہوتی ہیں۔ یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے محبت کی اندھی آنکھیں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی۔ زیبا، میں تمہاری زندگی تباہ کرنا نہیں چاہتا۔ ایک مدت تک میری ویران زندگی تنہائی اور تجرد کے عالم میں بسر ہوتی رہی۔ پھر تم آئی اور میں نے تمہیں دھوکہ دے کر تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ اب جبکہ تمہاری بصارت بحال ہو گئی ہے، میرے دھوکے کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ مگر شیدی، میں پریشان لہجے میں بولی، تم نے میری آنکھوں کا آپریشن کیا ہی کیوں؟ میں خوش تھی، میں اندھی تھی اور محبت کی پرستار تھی۔ وہ میرا انسانی فرض تھا۔ زیبا، ہاں، تم بہت نیک ہو شیدی۔ تم نے اپنی آنکھیں بند کیوں کر رکھی ہیں؟ شیدی نے پوچھا۔ ان کی آواز میں ایک درد تھا۔
مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے شیدی، آنکھیں بند ہوتی ہیں تو میں خواب اور افسانے کی سرزمین پر ہوتی ہوں، اور جب وہ کھل جاتی ہے تو ایک دیونما آدمی تمہارے دل آویز تخیلات کی عمارت کو مسمار کر دیتا ہے۔ یہی بات ہے نا؟ انہوں نے نہایت افسردگی سے پوچھا۔ نہیں شیدی، ہرگز نہیں۔ مجھے آنکھیں بند رکھنے میں محض اس لیے مزہ آتا ہے کہ مجھے اپنے عشق کے ابتدائی دن یاد آ جاتے ہیں، جب میں اندھی تھی اور تم نے پہلے پہل اظہار آرزو کیا تھا۔ شیدی نے میرا بازو چھوا اور کمرے کی دوسری طرف لے گئے، پھر ایک جگہ مجھے کھڑا کر کے کہا، زیبا اب آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ سامنے کا دادم آئینے میں ہم دونوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ میں مبہوت ہو کر اپنے حسین اور قاہدہ اور اپنے شوہر کے بھدے اور کریہ منظر کے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ میرا دل کھول رہا تھا، جی چاہتا تھا اپنا منہ نوچ لوں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور باوجود انتہائی کوشش ضبط کے میرے آنسو نکل آئے۔ شیدی نہایت دل شکستہ نظر آ رہے تھے۔ زیبا اب تم نے دیکھ لیا، میں تمہارے قابل نہیں۔ اگر دنیا میں انصاف کوئی چیز ہے تو مجھے انصاف چاہیے کہ تم سے معافی چاہوں اور ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جاؤں، یہی میری سزا ہے۔ شیدی ایسی باتیں نہ کرو۔ کیوں ایسی باتیں نہ کروں زیبا؟ آخر مجھے اپنی کم روئی کا احساس ہے، اپنے جرم کا احساس ہے، تمہارے حسن کا احساس ہے۔ ہر روز تم میری محبت کا مقابلہ دوسروں سے کرو گی، میری حسین اور اسسٹنٹ ہی سے کرو گی۔ میں سوچتا ہوں کہ جب تم مجھے اور اسے یکجا دیکھو گی تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی۔ میں بے قرار ہو گئی۔ شیدی تم بے حد بدگمان ہو۔ اس وقت میری نگاہ اتفاق سے الماری پر جا پڑی۔ اس میں ایک شیشی نظر آئی جس پر کسی تیزاب کا نام جعلی لفظوں میں لکھا تھا۔ میں الماری کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہا، او الماری میں کیا چیز رکھی ہے؟ کوئی تیزاب ہے؟ میں اسے اپنی آنکھوں میں ڈال لوں گی اور ہمیشہ کے لیے اندھی ہو جاؤں گی، پھر تو تمہاری زندگی مزے سے کٹے گی نا۔ یہ کہہ کر میں الماری کی طرف بڑھی۔ شیدی جلدی سے بولے، ٹھہرو، تمہیں پھر اندھا بننے کی ضرورت نہیں، میں خود اپنی مکروہ شکل ہمیشہ کے لیے چھپا لوں گا۔ اپنی آنکھیں ضائع نہ کرو۔ جب حسن دیکھنے کو مل جائے تو آدمی کو اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ دریچے کی طرف گئے اور ہلکی آواز میں، اسسٹنٹ۔ اسی وقت اسسٹنٹ اندر داخل ہوا۔ وہی حسین چہرہ، وہی میٹھی مسکراہٹ، وہی دل میں گھر کرنے والی نشیلی آنکھیں۔ میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ شیدی نے نہایت درد انگیز لہجے میں کہا، زیبا میں انصاف پسند ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں میں تم سے حسین لڑکی کے ناقابل ہوں۔ شاید آنکھیں مل جانے کے بعد یہ نوجوان تمہارا زیادہ موزوں رفیق ثابت ہو سکے۔ میں حیران ہو کر اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ مایوسی اور صدمے سے وہ پاگل ہو رہے تھے۔ میں نے رحم اور بے بسی کے لہجے میں کہا، شیدی تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے نہیں سمجھتے، تمہارا دماغ بیکار ہو گیا ہے۔ شیدی نے سنجیدگی سے کہا، زیبا میں سب کچھ سمجھتا ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ خدا حافظ زیبا، مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک آخری نظر مجھ پر ڈالی اور باہر چلے گئے۔ میں چیخ پڑی، اسسٹنٹ انہیں بلاؤ، دیکھو یہ تیزاب کی شیشی، میں یہ تیزاب اپنی آنکھوں میں ڈال رہی ہوں، میں اندھی ہو رہی ہوں اپنے شوہر کی خاطر، کہہ کر میں نے شیشی کا کارک کھول لیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ شیشی میرے ہاتھ سے دور جا گری اور اسسٹنٹ نے قریب آ کر کہا، دیوانی ہو گئی ہو؟ او مکروہ شکل اب تمہاری زندگی سے باہر ہے، مفت میں اپنی آنکھیں کیوں کھوتی ہو؟ شدت مسرت سے اس کی آواز عجیب ہو رہی تھی، کیونکہ اسسٹنٹ مجھے محبت چاہیے، صرف محبت۔ ڈاکٹر شیدی حسین نہ سہی مگر مجھ سے محبت کرتے ہیں، دلی محبت، ایسی محبت جس نے میری اندھی دنیا کو روشن کر دیا تھا۔ میں اس محبت کو کھو نہیں سکتی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ زیبا، میری روح کانپ گئی۔ یہ کس کی آواز ہے؟ ڈاکٹر شیدی۔ میں نے آنکھیں کھولیں۔ اسسٹنٹ کیا ابھی ڈاکٹر شیدی نے مجھے بلایا تھا؟ میں سچ کہتی ہوں، مجھے انہی سے محبت ہے۔ انہیں بلاؤ، اپنی نشیلی آنکھوں سے مجھے نہ دیکھو۔ میری محبت حسن کی محتاج نہیں، میری محبت ان کی محبت، ان کی عطا محبت کو پکار رہی ہے۔ میری طرف دیکھو زیبا۔ کیا میری آنکھیں تمہیں محبت کا سبق نہیں پڑھا سکتی؟ مجھے اپنی ان آنکھوں سے نہ دیکھو، دل کی آنکھوں سے دیکھو، شاید اس طرح تم اس میں میری عطا محبت کو پا سکو۔ اپنی آنکھیں بند کر لو اور میرے چہرے کو ٹٹولو۔ میں اس نوجوان کو تک رہی تھی کہ اچانک ایک نئے کانپتے ہوئے احساس سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور نامعلوم فطرت کے کس اصرار پر، جوش اضطراب کے کس تقاضے پر، میں آپ سے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تاریکی کی قدیم رفاقت میں ایک بار پھر میری ذیہنس انگلیوں کے سرے ایک بے قراری سے اس کے چہرے کے نقش و نگار ٹٹولنے لگے۔